Namaskar, dear learners. I am Dr. Anup Kathed, LT English GHSS Kanbua Kalsi Dehradun. In today's English teaching session, I welcome you again with a new topic, a new poem entitled Amanda, a poem, a story about a little girl child who is always scolded by her mother. What are the feelings inside that little child? Let's read it. A new topic, poem from your textbook, First Write, class 10th English, chapter 4. We have poem Amanda, written by Robin Klein, a famous Australian poetess. The areas to be discussed in the poem today are about the poetess, thematic approach, introduction of poem, recitation of the poem, reading and explanation with text, poetic device or figure of speech, central idea of the poem, vocabulary drill, and concluding key points of the poem. So these are the areas to be discussed while discussing about the poem today. Now coming to the section about the poetess Robin Klein. This is the picture of Robin Klein, born 28th February 1936. She is still alive. She is from Campsie, New South Wales, Australia. Let's focus on some popular works of Robin Klein. Penny Pollard books, the series of Penny Pollard books. Again, her series, Things book. The Giraffe in Pepperell Street. Young Castle. People might hear you. Udule, Rock and the Dragon. Hating Alison Ashley. Thalia the Filler. These are some popular works of Robin Klein. Some awards she received. Special mention in courtesy in Abra Prize at Bologna for the Giraffe in the Pepperell Street. This is award-winning book in 1978. She won CBCA Children's Book of the Year Award, Younger Readers for Thing in 1983. Again, Human Rights, Literature and Awards, 1989. So this is little background. Now coming to the theme of the poem, Amanda, it's all about childhood and innocence, difficulties in growing up. ग्रोइंग अप डिफिकल्टी, जब कोई बच्चा बढ़ता है उम्र के साथ साथ क्या डिफिकल्टीज वो फील करता है. फ्रीडम एंड फन ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का जो मज़ा है या जो आज़ादी एक बच्चे को मिलनी चाहिए या जो फील करता है. रिलेटेड दैट एक्सेस ऑफ स्कोल्डिंग. सो दिस इज अ कॉमन थिंग एवरी चाइल्ड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, स्कोल्डिंग बाय the parents. फील ऑफ लोनलीनेस, स्कोल्डिंग जो डांटना है, उसके बाद जो फील आता है अकेलेपन का इन ए चाइल्ड. जब एक्सेस जब हो जाएगा डांटना, तब बच्चा महसूस करता है कि मैं अकेला हूं, मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है. सो दिस फील ऑफ लोनलीनेस इज कॉमन इन एवरी चाइल्ड ड्यू टू स्कोल्डिंग. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. They feel their freedom is curtailed. The poetess Robin Klein expressed the inner feeling of a child who is scolded again and again for little things.
As a result of it, she feels herself alone and also as orphan child. The continuous nagging to a child is actually bad effect on her mind. The poem is all about the mental state of a child who is feeling with insecurity of life as she is alone in herself. The poem also discusses about an extra care of a child and a friendly nature of parents can make them happy at any moment. The over nagging can lead them in a wrong way. So this is about the introduction, how a child feels after scolding, excess scolding. So the mental state is actually disturbed. So the normal behavior is unseen in a child who is growing with his or her age. So there is a thing which is a cautious way, a thing to remember about the children, that how to treat your children as a parent. So it's an important thing to consider, to understand while treating the children. तो बच्चों का ध्यान कैसे रखना है जब उनकी बढ़ती उम्र होती है, कितना उनको डांटना है, कितना उनको इंस्ट्रक्ट करना है, कितना उनको कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा न हो कि बच्चे पर इसका बुरा असर पड़े, बैड इफेक्ट पड़े, उसका जो मेंटल स्टेट है वो डगमगाए, खराब हो जाए और कुछ गलत कदम ना उठा ले. So this is all about the introduction of the poem. Title and poem: Amanda as a little girl. Here we have the text. We will first read, then explain the text. So the poem is all about instruction. Instruction to a child. एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Bracket. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Bracket. I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Again, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Bracket. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Written by Robin Klein. So this picture is actually describing the mental state of a child who is feeling alone all the time. Why? Having parents, having family, but the feeling, the thought inside a child is all about loneliness. ये जो फीलिंग है बच्चे के अंदर जो आ जाती है, एक्सेस ऑफ स्कोल्डिंग,
जब ज़्यादा उसको डांटा जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एक दिन अकेला महसूस करता है, बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स अ केयर, ए लविंग टच। एक बच्चा जिसको हमेशा एक केयर चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है, लेकिन excess of scolding makes him or her lonely always. Now let's explain the text. Don't bite your nails, Amanda. The poem is all about instruction from her mother. So here mother is instructing, don't bite your nails, Amanda. अपने नाखूनों को मत काटो, Amanda. Actually this is a bad habit of any child. अपने नाखूनों को मत चबाओ, मत काटो, Amanda. Don't hunch your shoulders. अपने शोल्डर्स को ऐसे उचकाओ मत, मीन्स स्टैंड और सिट प्रॉपरली, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। जो मूवमेंट है बॉडी का, जो पॉस्चर है, जो जेस्चर है, प्रॉपर रखो, सीधे रखो, अमांडा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन दैट हर मदर इज गिविंग हर, दैट बी अ गुड गर्ल, ढंग से रहो। It's all about etiquette. तो मदर क्या सिखा रही हैं? एटिकेट सिखा रही हैं, तौर तरीके, जिसको एक शिष्टाचार भी बोला जाता है, कैसे बिहेव करना, कैसे रहना है। सो इन ब्रैकेट व्हाट वी सी, दिस इज इनसाइड फीलिंग ऑफ अमांडा। क्या सोच रही है अपने आप के बारे में, देखें। देयर इज लैंग्वेज एमराल्ड सी, एक रिलैक्स बड़ा सा एक समुद्र। एमराल्ड इज ग्रीन कलर स्टोन, प्रेशियस स्टोन, एक कीमती जो पत्थर होता है, पन्ना जिसे कहते हैं, उस कलर का जो समुद्र होता है, एक फैला हुआ है शांत समुद्र जैसा, कहीं पर, जहां पर वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहां पर मैं अकेली हूं, इज मी ए मरमेड, किसकी तरह? एक जल परी की तरह। तो अपने आप को कैसा पाती हो? बिल्कुल अकेला, एक शांत फैले हुए समुद्र में एक अकेला जो जीव, एक मरमेड मैं हूं, और जो बड़े आनंद से ब्लिसफुली वहां पर रह रही हूं, और मैं उस जल परी की तरह अपने आप को महसूस करती हूं कि मैं विशाल समुद्र में बिल्कुल अकेली हूं। सो द फीलिंग इज टोटली लोनलीनेस। अकेलेपन का जो फीलिंग उसने महसूस किया, फील किया, एक्सेस ऑफ स्कोल्डिंग उसकी वजह से। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अगेन मदर कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क, गृह कार्य कर लिया है? डिड यू टाइड योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है, साफ सुथरा कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू, मैंने सोचा, मुझे लगा, मैंने तुम्हें कहा है, टू क्लीन योर शूज, अपने जूते साफ करो, अपने शूज साफ करो, अमांडा। तो यहाँ अगेन हमें क्या दिख रहा है? इंस्ट्रक्शन अगेन, और इंस्ट्रक्शन इस रूप में दिख रहा है कि उसको डांटते हुए कहा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कहा था। उसका जो इनसाइड फीलिंग क्या है, देखिए फिर से। आई एम एन ऑर्फन, अपने आप को कैसा महसूस कर रही है अमांडा? ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, ऑर्फन मीन्स अनाथ। अनाथ कौन होता है? हु हैज लॉस्ट हिज और हर पेरेंट्स, जिसके माँ बाप नहीं होता है। बट हैविंग पेरेंट्स, शी इज थिंकिंग अ सेल्फ ऑर्फन। व्हाई? और मैं गलियों में घूम रही हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, ऑर्फन की तरह। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं नंगे पाँव धूल उस डस्ट में चल रही हूँ, और मेरे लिए द साइलेंस इज गोल्डन, और सोने की तरह है, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और अगर मुझे फ्रीडम मिल जाए, वही मेरे लिए मिठास है। सो मेटाफोरिक यूज्ड बाय द पोएटेस हियर, अर्बन क्लेन। गोल्डन को साइलेंस के रूप में और मीठे को आज़ादी के रूप में यहाँ पर तुलना की गई है, मेटाफर एक दिया गया है यहाँ पर। तो वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है, बिकॉज एवरी टाइम शी इज रिसीविंग दैट स्कोल्डिंग बिहेवियर ऑफ हर मदर, अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। देखिए क्या फीलिंग एक बच्चे की हो सकती है, अगर इतना उसको डांटा जाए तो कहाँ उसका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब करता है, ये इसमें पोएम में दिखाया गया है। फिर उसको कहा जाता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, व्हाट इज एक्ने? एक्ने होते हैं बच्चों मुहासे।
जो पिंपल्स फेस पर जो आ जाते हैं उसको कहते हैं मुहासे। ज्यादा खाओगी चॉकलेट, मुहासे हो जाएंगी अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू, मैं जब तुमसे बात करती हूँ नीचे मत देखा करो, मेरी तरफ देखो। सो अगेन इंस्ट्रक्शंस, डांटना दोबारा उसको हो रहा है। फिर से देखिए अब क्या सोचती हो अकेले में, अपने मन में क्या सोचती है। आई एम रेपुंजल, रेपुंजल स्टोरी ऑफ फेरी टेल स्टोरी है। आई हैव नॉट ए केयर, एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल अकेली रहती है, जंगल में अकेली फंस जाती है, फिर एक प्रिंस आकर के उसको मिलता है। दिस इज अ स्टोरी, अनदर स्टोरी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ रेपुंजल की तरह, मेरी कोई केयर नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं किसी टावर किसी बिल्डिंग में रह रही हूँ, बिल्कुल शांत। रेयर जो एक जगह होती है टावर में। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी अपने चमकते बालों को नीचे नहीं कर पाऊंगी। तो एक जिसके बहुत सुंदर बाल थे रेपुंजल के, उसकी कहानी है। शी वॉज ऑल्सो टोटली अलोन। तो उसकी जो फीलिंग है ऐसी आ रही है जैसे कि मैं रेपुंजल हूँ, और ऑल अबाउट लोनलीनेस, शी इज टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस। इतना अकेलापन उसके जीवन में है, ऐसा महसूस करती है, फैमिली होते हुए, पेरेंट्स होते हुए। फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, स्टॉप दैट सल्किंग वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। ऐसा एक्टिविटी करना बंद करो, ऐसा डार्क डीप मूड में मत रहो अमांडा, इतना मूडी मत बनो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, आई नेग्ड यू, मैं तुम्हें हमेशा झड़कती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ अमांडा, कोई भी ऐसा सोचेगा। जबकि वास्तव में ऐसा ही था, बार बार उसको नैग किया जा रहा था, डांटा झड़का जा रहा था। तो इसीलिए उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं लोनलीनेस की। ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबिन क्लेन अबाउट अ लिटिल चाइल्ड। और ये एक बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड एक पोएम है जो दिखाती है कहीं ना कहीं बच्चा बोल तो पाता नहीं लेकिन उसके मन में ये बातें आ सकती हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर ट्रीटिंग एनी चाइल्ड, एज ए पेरेंट, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर। किसी भी बच्चों को जब हम ट्रीट करते हैं उसको इतना ना डांटे कि उसके मन में सारी बातें आ जाएं। तो ये समझाने की कोशिश की है पोएट ने कि कैसे हमें एक बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, एज वी आर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट, एज वी हैव गॉन थ्रू द टेक्स्ट of this poem Amanda, we found that the excess scolding to a child is actually dangerous for its mental state, because she or he can take any dangerous step in his life, in her life. So always be careful when treating any child, as a parent, as a brother, as a sister, as a friend. जब हम किसी बच्चे को ट्रीट करें, उससे बातें करें, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए बच्चे को कि मुझे बार बार डांटा जा रहा है। और जब बार बार इस प्रकार का उसके मन में बात आएगी कि मुझसे बार बार मुझे नैग किया जा रहा है, झड़का जा रहा है, डांटा जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, सो इन ए रिजल्ट बच्चा अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करेगा। हैविंग ए फैमिली, परिवार होते हुए भी, रिलेटिव्स होते हुए भी अपने आप को बच्चा अकेला महसूस कर सकता है, कुछ भी गलत कदम बच्चा उठा सकता है। सो बी केयरफुल ऑलवेज विद द चिल्ड्रन while treating children. They only need love and care. So जब भी हम बच्चों को ट्रीट करें हमेशा इस प्रकार से ट्रीट करें, एज ए फ्रेंड, एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, ताकि उनको भी लगे कि हमारा भी इस जीवन में कुछ इम्पोर्टेंस है। सो गिव इम्पोर्टेंस ऑल द चिल्ड्रन इन योर लाइफ। कमिंग टू द पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच in the poem. First we have rhyme scheme. We have AA, CCC, AATA, AAE, AAFA, GGG, AAHA, rhyme scheme in the poem. We have other poetic devices, figure of speech. Assonance, the sound of vowel O, we find don't, hunch, your, shoulder here. Metaphor, as we have discussed while reading the poem, emerald sea, right? Languid as emerald sea. Silence is golden, silence with golden. And freedom is sweet. Freedom is considered as sweetest. Anaphora, repetition of a word in more than one line. What is boy? What? Alliteration, stop that slouching and sit up straight. S letter repetition. S letter का हम इसमें repetition हुआ है.
SS, stop slouching, sit straight. So this is all about the poetic devices figure of speech in the poem. The central idea of the poem Amanda is about a mute conversation between children and parents. They keep giving commands to their children. They want them adopt the norms of society. This has hostile impact on the upbringing of the children. Amanda seems to be escaping in the beginning. However, in the end, she stops imagining and rather becomes short-tempered, irritable, or moody and angry. The parents are considered as nagging to children for the sake of change in sense of the discipline, etc. Amanda represents those teens who pay no heed towards the wisdom of their parents and teachers and live in an imaginary world of as mermaid, Rapunzel, orphan, where no adult is there to instruct them or to be hindrance in so-called immature world of freedom without realizing that freedom comes with responsibility. So, the words like mermaid, Rapunzel, orphan, इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की चीज़ें जब उसके दिमाग में आती हैं बच्चे के, तो इट्स ऑटोमेटिक वो अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि अभी वो इमेच्योर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी उसके अंदर इतनी जल्दी आ नहीं सकती, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा विद ग्रोइंग एज उसके अंदर जो सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी का है वो आ जाए, लेकिन ऐसा एकदम से संभव नहीं हो पाता है, बिकॉज एज ए चाइल्ड इट्स टाइम टू प्ले एंड एंजॉय द लाइफ, बट again and again when we go through that behavior, scolding, under control, instructing, बच्चा अपने आप को अकेला ज़रूर महसूस करेगा और उसका जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है. So it's time to be careful about the treatment with a child in every condition, in every stages of life. Now coming to the section vocabulary drill, we have some important words, some difficult words coming in the poem. We have hunch, bend, झुकना, इस प्रकार से झुकना, slouching, sitting lazy, restless, बैठना, languid, relax, languid, relax. Emerald is green color. Emerald actually is a precious stone, जिसे हम पन्ना भी कहते हैं. Inhabitant जो निवासी होता है, रेजिडेंट होता है. Drifting slowly, पानी में जो चलना होता है, carried slowly. Blissfully, happily. Orphan, a child whose parents are dead, एक बच्चा जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसे orphan या अनाथ कहते हैं. Acne, जो pimples होते हैं, जो मुहासे जो फेस पर आ जाते हैं. Tranquil, शांत, calm. Sulking, upset mood, जब आपका मूड खराब होता है, then it is sulking, upset. So these are some difficult words, important words we read in the poem. So do practice, make sentences according to you. After vocabulary drills, we have some concluding points from the poem Amanda. First point, loneliness in child. What we see, poem एक बच्चे में अकेलापन आ जाता है. फ्रीडम ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की जो आज़ादी है उसकी इसमें बात की गई है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा आज़ादी से घूमे फिरे, खेले, पढ़े और बढ़े. नेगेटिव थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, एक्सेस जब हो जाएगा, स्कोल्डिंग, डांटना, इंस्ट्रक्ट करना, कंट्रोल करना बच्चे को, तो हो सकता है बच्चे के मन में नेगेटिव थॉट्स आए और ही और शी may take any wrong decision. Need of parental support, इस एज में पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है. बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ पेरेंट, द एक्सेस ऑफ स्कोल्डिंग कैन क्रिएट ट्रॉमा इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. सीमा से अधिक डांटना बच्चे के मन में एक घाव पैदा कर सकता है और वो एक परमानेंट ट्रॉमा हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग उसको परेशान कर सकता है. उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं और वो अपने को भी
हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सो बी केयरफुल। डेवलप एटिकेट्स। एटिकेट को डेवलप करना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कहीं बच्चे का बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। डेवलपिंग द वेज ऑफ लर्निंग, उसके तरीकों में, सीखने के तरीकों में डेवलपमेंट होना है, होना भी चाहिए, लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए कि कहीं उसका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब ना हो। Amanda again escapes into dreams. She imagines herself to be an orphan who is roaming around in the street freely. ऐसी स्थिति ना आ जाए अमांडा की तरह बच्चे के मन में कि वो सपनों में भागना शुरू कर दे कि मैं ऑर्फन हूँ, मैं रेपुंजेल हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सो बी केयरफुल while treating with your children, with your relatives as a friend. किसी भी स्थिति में आप बच्चे से ट्रीट कर रहे हो, हमेशा ध्यान रहे बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूडिंग की पॉइंट्स। होमवर्क, वी हैव सम क्वेश्चंस हियर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक अमांडा इज रियली अलोन? क्यों सोचते हैं आप, आपके अनुसार अमांडा अलोन है तो क्यों है? अकेलापन आप उसको डिस्कस करेंगे नोटबुक में। सेकंड, व्हाट शुड बी द पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू हर? पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए अमांडा के अनुसार? शुड वी स्कूल आवर चिल्ड्रन टाइम टू टाइम और नॉट? क्या हमें अपने बच्चों को समय के साथ साथ डांटना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? राइट डाउन। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू? आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा हो या ज़्यादा डांटा हो? आपका अनुभव कैसा था? राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। अपने बचपन की जो यादें हैं उनके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। एंड व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ चाइल्ड एट होम? एज ए चाइल्ड आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं जब आप घर पर हैं? These are some questions for you. The areas we discuss in the poem about the poet, thematic approach, introduction of poem, recitation of the poem, reading with explanation, poetic devices, a figure of speech, central idea of the poem, vocabulary drill, and at last we have concluded with some key points. So this was all about the poem Amanda. We have discussed, we read, we explained it. So dear learners, hopefully you all have understood the gist of the poem Amanda, the feeling inside of a child who is oftenly scolded and thinks herself as lonely in this world. Having family, she is feeling alone herself. Why? Because of excess scolding. तो हमें बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चों के साथ कैसा बिहेव हो, और टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की मानसिकता, उनका मनोविज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यू विल go through the summary of the poem, theme of the poem, vocabulary, concluding key points with all exercises to understand the gist of the poem. So student, see you soon in next video. Take care. Thank you.